ਤੇ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਗੁੰਜੀ। ਉਹ ਬਾਣੀ 12ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੋਇਟਰੀ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲ ਧਾਇਆ ਜੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਾਪੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜਾਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਸਲਤਨਤ ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਲਕਾਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤੂਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਦਿਖਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਖਰ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਸਾਰਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਵਿਹਲਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹ ਮਾਣ ਤੋੜ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਿਹਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਜਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। निदा फाजली का शेर आके इस स्टेशन पर खत्म हुई भारत तेरी खोज। नेहरू ने एक किताब लिखी सी भारत तेरी खोज, ओदा तर्जमा सी स्टेशन पे खत्म हुई भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं पुली के सिर का बोझ। जो लोग उपरों आउंदे आ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ
ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। जो बोले सो निहाल। मैं पिछले 4-5 दिन से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ और मैं पंजाबी भाषी अपने भाइयों के बीच आया हूँ। हिंदी और पंजाबी में माँ और मौसी का रिश्ता है, तो मैं एक तरह से मौसी के घर आया हूँ, इसलिए शायद ज़्यादा प्यार आपका मिल रहा है, ज़्यादा लाड। मुझसे पहले जो वक्ता बोले वो काफ़ी विद्वान है, उन्हें काफ़ी स्मरण है और काफ़ी उन्होंने पढ़ा है। उनका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं विधिवत अभी तक एक कवि हूँ। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने एक सवाल पूछा कि आप प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, बड़े मशहूर कवि थे, बड़ा पैसा लेते थे, दुनिया में शो करते थे, फिर ये क्या हुआ कि आप सड़क पर गालियाँ खाने लगे, आपके खिलाफ मुकदमे होने लगे, आप जेल जाने लगे। मुझे आज भी याद है कि दुर्गा शंकर नागपाल नामक एक IAS लड़की को खनन माफिया का विरोध करने पर यूपी पुलिस ने बर्खास्त कर दिया था, यूपी सरकार ने। तो मेरे घर से मैं और मनीष सिसोदिया सुबह निकले नोएडा में धरने के लिए कि हम लोग शायद आज प्रदर्शन पे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस थोड़ी निर्मम है, तो मेरी बेटी 7 साल की, वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हम लोग नोएडा जा रहे हैं, मैं और मनीष मेरी गाड़ी में जा रहे थे ड्राइवर को लेके, और ये दिल्ली पुलिस की तरह नहीं है, हो सकता है मारपीट भी ज्यादा हो, या हो सकता है अगर डिटेन कर लें तो 2-1 दिन में छोड़े, जमानत करानी पड़े। तो उसने कहा ठीक है, पता चल जाएगा टीवी से, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े मन से। क्षत्राणी है वो, मैं ब्राह्मण हूँ, वो ठाकुरों की लड़की है, तो उसमें दम है थोड़ा। उसने कहा जाइए, मैं चला गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने ज्ञापन दिया, कलेक्टर भी हमारे साथ ही था, उसने कहा बिल्कुल गलत हुआ है, मैं ऊपर तक भिजवाता हूँ, आप बेफिक्र रहिए, बात आगे जाएगी। और हम लोग लौट आए। रास्ते में हम अरविंद के पास रुके थोड़ी देर के लिए, खाना वाना खा के हम घर पहुंचे। तो मैं जब शाम को पहुंचा तो वो उसके म्यूजिक टीचर आए हुए थे और वो पियानो सीख रही थी। तो उसने मुझे मुड़ के देखा और कहा कि जेल नहीं गए? ये हमारा काम नहीं था। आप समझते हैं कि आपने सवाल पूछा कि आप प्रोफेसर थे तो आप ऐसे कैसे आ गए? इस सवाल का जवाब तो सिक्खी के इतिहास से जुड़ा हुआ है, खालसा पंथ की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बाबा गुरु नानक देव जी ने दुनिया के धार्मिक भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली आवाज उठाई पिछले 1000 साल में। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा कि इस दिशा में मुंह करो और इस दिशा में लेटो और इस दिशा में जाओ। उन्होंने पहली बार धार्मिक भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई। सिखों की परंपरा में शस्त्र उठाने की परंपरा नहीं थी, वाणी से मुकाबला चल रहा था। लेकिन दशमेश गुरु जी ने बताया कि जो जिस जबान को समझता हो उस जबान में उसका जवाब देना चाहिए। हम लोग तो सामान्य घरों से आए हुए लड़के, कस्बों में पढ़े हुए, हमारे तो सब जगह बराबर थी। बचपन में मैं पहली क्लास में LG क्लास में पढ़ता था, मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो गया सतबीर सिंह, एक लड़का। उसके पिताजी सरदार राजेंद्र सिंह मेरे पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त, और खूब सारी बातें चलती थी, सिक्की का इतिहास चलता था। दोनों प्रोफेसर दोनों सुबह बैठ जाएं, लंबी लंबी बातें करें, डल्ला सेठ का किस्सा, पंज प्यारों का किस्सा, ऐसा हुआ था सरहिंद की लड़ाई में, फिर ऐसा हुआ चमकौर गढ़ी की लड़ाई में, ऐसा हुआ मलेरकोटला के नवाब ने फिर ऐसा किया था। जो किस्से कहानी मेरे पास तक पहुंचते रहे, जो इतिहास पहुंचता रहा। हम तो अपना काम कर रहे थे। लेकिन कॉमनवेल्थ के समय देश लुटता दिखाई दिया। कॉमनवेल्थ के टाइम पूरी दुनिया में यह चर्चा नहीं थी कि कॉमनवेल्थ कौन जीतेगा, यह चर्चा थी कि खाया कितना जा रहा है। 75,000 रुपए का 3 टन का AC लगता था, 1.5 लाख रुपए महीने के किराए पे 3 महीने के लिए AC खरीदे गए। पूरे देश में कोई बोलने को तैयार नहीं था। मेरे घर पर खाना था, 3-4 दोस्त खाना खा रहे थे, मनीष भी थे, अरविंद भी थे। तो कॉमनवेल्थ की ओपनिंग सेरेमनी के कार्ड पड़े थे मेरे घर, किसी ने भेजे थे सोच के कि सेलिब्रिटी पोइट है, आएगा तो जरा स्टैंड में लाइट वाइट जलेगी, कैमरा आएगा। तो उस कार्ड को देख के अरविंद ने देख के कहा, बोले जाते में अच्छा लगेगा इसमें? तो मैंने कहा अच्छा मतलब? बोले ये देश का पैसा लुट रहा है, गरीबों का पैसा लुटा रहे हैं, ये इसमें जाते अच्छे लोग होंगे। मैंने कहा अब कर क्या सकते हैं, कुछ हो तो सकता नहीं है। बोले यही गलती है कि कुछ नहीं हो सकता, आओ इसके खिलाफ एक FIR करते हैं। अब आप सोचो, देश की सरकार, केंद्र की सरकार शक्तिशाली, पूर्ण बहुमत की, क्या FIR? 5 सिरफिरे गाड़ी में बैठ के चले, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहली FIR हमने कॉमनवेल्थ में सरकार के खिलाफ कर दी, कलमाडी साहब के खिलाफ कर दी। लोगों ने कहा पागल हो गए। मेरे पिताजी ने कहा अपना काम धाम जारी रखना, ये तो सब तुम पागल बनने काम है, थोड़ा बहुत कर लो ठीक है, और अपना काम मत
बेचारे वो पुराने प्रोफेसर जैसे से उन्होंने अपनी जिंदगी चलाई, हम लड़ते रहे। पहली एफआईआर हुई, उसके बाद 1 अप्रैल का आंदोलन हुआ, उसके बाद 15 अगस्त का आंदोलन हुआ, उसके बाद 84 के पीड़ितों के हक के लिए मैं और अरविंद भाई जंतर मंतर पर बीबी नरप्रीत कौर के साथ 2 दिन तक अनशन पर बैठे। फिर उसके बाद वो अनशन समाप्त हुआ इस आश्वासन के साथ कि कुछ होगा। पंजाब की तत्कालीन सरकार के मंत्रियों ने कहा कि हम कुछ करेंगे, हुआ कुछ भी नहीं। ऐसे किस्से चलते रहे। मैं शायर हूं, मैं शायर रहना चाहता हूं। पंजाब से मेरा नाता इतना होना चाहिए कि मुझे बाबा फरीद अच्छे लगे, वारिस शाह अच्छे लगे, बुल्ले शाह अच्छे लगे, और ज्यादा रोमांस में हूं तो शिव बटाली भी अच्छा लगे कि पुछदे हो हाल फकीरा दा साडा नदिया बिछड़े नहीं रहा। मेरा ये वास्ता होना चाहिए था। मेरा कोई काम थोड़ी था जो मैं कर रहा हूं, और मैं इस काम में बहुत खुश नहीं हूं कि इसमें मुझे कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो मैं दिल्ली की सरकार में होता। अगर ऐसा ही मन होता तो मैं अमेठी में जाके पिटने न जाता, 87 मुकदमे खाने न जाता, मैं दिल्ली में लड़ता। दिल्ली में जहां मैं रहता हूं वहां जो मेरे सांसद प्रतिनिधि लड़े थे वो 5,28,000 वोट पाए थे, मैं तो अमेठी जाकर 28,000 पाया था। मुझसे किसी ने कहा कि हारना ही था तो इतनी दूर क्यों हारने गए। मैंने खालसा पंथ की एक बात उठा के उसके दी, और मैंने उसको कहा कि हारना जीतना नहीं होता। तारीख में लड़ाइयां इस बात से नहीं याद रखी जाती कि हारा जीता कौन, तारीख में लड़ाइयां इस बात से याद रखी जाती है कि गोली पीठ पर खाई कि छाती पर खाई। आप जाकर तो लुटता रहेगा और आप चुप रहेंगे। चांदनी चौक के व्यापारियों से नौवे गुरुजी का क्या संबंध था? वो तो खालसा पंथ में दीक्षित भी नहीं थे, उनके सिर पर तो पगड़ियां भी नहीं थी, बस वो मजलूम थे। वो एक आध्यात्मिक गुरु के पास गए, उन्होंने कहा कि ये सरकार कहती है मुगलों की कि इस्लाम कबूल कर लो। नौवे गुरुजी ने उन्हें रास्ता बताया और कहा कि अगर कोई मजबूत आदमी जिसका तुम सहारा ले लो और कहो कि वो कर लेंगे तो हम कर लेंगे तो तुम बच सकते हो। और बड़े भोलेपन से दशमेश गुरुजी ने कहा कि ये आपसे बड़ा आदमी कौन होगा। और आप सब ने देखा कि 3-3 पीढ़ियां धर्म के नाते कुर्बान हो गई, 4 साहबजादे कुर्बान हो गए, 2 लड़ाई में काम आए, दीवार में चिनवा दिए गए, और उसके बाद भी जज्बा ये रहा कि 4 हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तो खालसा पंथ ने सिखाया है, मेरे धर्म ने सिखाया है कि अत्याचार हो, गलती हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके खड़े हो जाओ। शहीद आजम 12 साल के थे जब जलियांवाला बाग हुआ। मैंने अभी आज तक पे एक प्रोग्राम किया था, अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा हो, जलियांवाला बाग में 12 साल के थे, 12 मील चल के आए जब उन्हें पता चला कि वहां ऐसा दुर्धर्ष कांड हुआ है। और उसके बाद वो मिट्टी उठा के लेके गए कसम खाते हुए। अपने चाचा अजीत सिंह जी से प्रभावित थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उन्होंने उनके अंदर बगावत का बीज बोया। जब फांसी हुई तो उनको चंद्रशेखर आजाद ने खत भिजवाया बटुकेश्वर दत्त के हाथ में और कहा कि सरदार हम आपको बचा लेंगे, कोट लखपत जेल की दीवार बारूद से तोड़ देंगे, हम आपको फांसी नहीं चढ़ने देंगे। उनका वो खत आज भी प्रकाशन विभाग की किताब में है। उनके प्रपौत्र अभितेज सिंह संधू से आप किताब ले सकते हैं, किताब साइट पर भी है। उस किताब में उनका खत है, उन्होंने लिखा चंद्रशेखर आजाद को कि पंडित जी मैं भी जीना चाहता हूँ, मुझे कोई मरने का शौक नहीं है, मुझे जान देने का शौक नहीं है, पर मुझे बचाना मत, मुझे फांसी चढ़ जाने देना। क्योंकि मैं इसलिए फांसी चढ़ना चाहता हूं कि आने वाली नस्लों में हिंदुस्तान की मां ये ख्वाब देखें कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। और आज हिंदुस्तान के नोटों पर चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का चित्र छपता हो, हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पूरे भारत के हर नौजवान लड़के के, लड़की के, हर जिगर वाले आदमी के दिल पर केवल एक ही फोटो छपता है, शहीद आजम भगत सिंह, जो बाहर निकलता है। कल मैं परसों गया था तो हमसे विक्टोरिया प्रांत के जो लेबर पार्टी के सांसद थे श्री टिम साहब, उन्होंने मुझसे कहा मैं आपसे इसलिए मिलना चाहता था, मैं देखना चाहता था, हम 120 साल पुरानी पार्टी है, ये कौन सी पार्टी है जो 2-2.5 साल में आई है और 70 में से 67 सीटें जिसने ले ली। मैंने उनसे कहा कि हम इस बात पर बहुत गर्वित नहीं है, हम इस बात पर कोई गुरूर नहीं है, क्योंकि हमने दोनों प्रकार की चीजें सह के देख ली है। हम हार के भी आ चुके हैं, हम जीत के भी आ चुके हैं। हमने वो वक्त भी देखा है जब हमें 4 आदमी पार्टी कहा गया, जब हम हिंदुस्तान में 423 सीटों पर लड़े और केवल पंजाब से हमें 4 सीटें आई। भाजपा के एक सांसद ने, नवनिर्वाचित सांसद ने मजाक में उससे एयरपोर्ट पे कहा, कुमार जी 4 ही आए हैं। मैंने कहा भ्रष्टाचार की अर्थी उठाने के लिए 4 ही काफी होते हैं। और आए भी कहां से हैं जहां 1 ही 1.25 लाख के बराबर होता है। हुकूमतें तो आनी जानी है,
अगर किसी को ये भ्रम हो गया है, किसी को ये गलतफहमी है कि पंजाब उनकी बकौती है, किसी को ये गलतफहमी हो गई है कि वो सियासत का मजहब और मजहब की सियासत का घालमेल करके काम चला लेंगे, तो भूल जाएंगे। आप तो 10 साल 15 साल के नए राजा हो, आपकी तो लाल बत्तियां नई है, आपकी ये चमकदार ऐसी गाड़ियां तो नई है, आपके ये कनाडा में, कैलिगरी में, एडमिंटन में जो पैसे के आपने पेड़ लगाए बड़े बड़े कबड्डियों के नाम के, ये तो नए हुजूर। ये जो नशे का पैसा आपने कमाया है तो नया है। यहाँ पगड़ी वाले लोगों का सूरज नहीं डूबता था, जिनका यूनियन जैक हिंदुस्तान में उतरता था तो ऑस्ट्रेलिया में चढ़ जाता था, ऑस्ट्रेलिया में उतरता तो साउथ अफ्रीका में चढ़ जाता था। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय के कपड़े हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त बदलता है तो इसलिए इसका गुरूर क्या करना, इसका अहंकार क्या करना। और आप क्या कहना चाहते हैं? आपके पास तर्क क्या है? पहले क्या तर्क था? ये तो अमेरिका फंडित है। सबसे पहले हमसे बोले अमेरिका फंडित। हम राजनीति करना चाहते थे कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको वो 2 साल याद है कि मैं जाता था बहस में, आपने टीवी पे देखा होगा, हम कहते थे लोकपाल बना दो साहब, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। देखिए कानून तो सदन में बनता है, ज्यादा समस्या है चुनाव लड़िए, अंदर आइए, कानून बना लीजिए। हम कुछ भी कहें उनसे कि साहब वो ऐसे इज्जत लुट गई दामिनी लड़की की, ऐसा हो गया कुछ कर लिए। देखिए कानून तो अपने हिसाब से करता है। हम जनप्रतिनिधि लोग हैं, भारत की संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं। आइए, इनको ये लगता था आम आदमी तो बहुत पिछला आंदोलन नहीं कर सकता, लो करके दिखा दिया। कर तो लेगा, सफल नहीं हो सकता, लो सफल करके दिखा दिया। बोले आंदोलन से क्या होता है, पार्टी बना के दिखाओ, दिखा दी। बोले पार्टी तो 1400 चुनाव लड़के दिखाओ, दिखाया। बोले 76 पार्टी चुनाव लड़ रही है, जीत के दिखाओ, दिखा दी। बोले सरकार बना के दिखाओ, बना दी। बोले तो माइनॉरिटी के लोग के मेजॉरिटी की बना दी, ज्यादा कहोगे तो देश की बना देंगे, पंजाब की बना देंगे। आम आदमी जब खड़ा हो जाता सब लोग। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है, ऐसी कौन सी फिलॉसफी है? हम सब विश्वविद्यालयों के टॉपर्स हैं। मैंने भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में अपनी यूनिवर्सिटी टॉप करी है, अपने माँ बाप के लिए गर्व का अनुभव पैदा किया है। अरविंद केजरीवाल ने भी IIT पास की, उसके बाद IRS पास की, कमिश्नर हुए इनकम टैक्स के। मनीष सिसोदिया टीवी में इतने बड़े एंकर थे। आशुतोष आप देखते हैं टीवी में इतने बड़े IBN चैनल के CEO थे। ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है कि तुम जैसे जाहिल, गंवार, बलात्कार के आरोपी, डकैत, तस्करी के आरोपी सरकार को चला सकते हैं और भारत माता के और सिखों के बेटे, पंजाब के बेटे बेटी नहीं चला सकते? ऐसा कौन सा महान काम तुम सीख के आए हो? हमें सिर्फ ये कहना है, अगर आप अपना काम ठीक नहीं करोगे तो भगवान ज्यादा दिन प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो दूसरे को काम सौंप देगा। आपको ईश्वर ने काम सौंपा, हम हार के आए, मैं जमानत जब्त करा के लौटा, 5 महीने अमेठी में लड़ा, हमले हुए, मेरी गाड़ी पर फरसा मारा गया, पूरी गाड़ी का स्टील कट गया, मैं बच गया। हमने सोचा हम सब जगह से हार गए, पंजाब में जीते, चलो दरबार साहब माथा टेका, थोड़ा मन ठीक हो जाएगा। मैं, मनीष और अरविंद भाई गए वहां माथा टेकने के लिए। यार ये तो भगवान का मंदिर है, मैं यहां आज आया हूं, आपने मुझसे बात करने के लिए कह जरूर दिया, पर मैं किस लिए आया हूं कि मेरी तबीयत खराब थी, चलो मैं दरबार साहब में माथा टेक देता हूं, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। हम माथा टेकने के गए, आपको इतनी हमसे घृणा थी कि आपने प्रसारण बंद करा दिया चैनल का। एडमिंटन में, वैंकूवर में, सरी में कोई बीबी जी बैठी होंगी 80 साल की, कोई वीर जी बैठे होंगे 90 साल के अपने बेटों के पास कि चलो मैं लाइव देख लूं दरबार साहब, आपने उसी को काट दिया। आपकी दुश्मनी हमसे है कि दरबार साहब से है? अगर हमसे इतनी दुश्मनी है और आपको लगता है कि ये प्रसारण काट के आप अपनी जिंदगी चला लेंगे, तो आपको पता नहीं है कि जिनका आप प्रसारण काट रहे हो अगर उन्होंने सोच लिया तो पूरी जिंदगी के प्रसारण कट जाएंगे, कहीं भी पहुंचने की संभावना समाप्त हो जाएगी। तो पंजाब में लड़ाई छोटी सी बात की है, ये है तो सबके लिए हो ये जिद हमारी है, ये है तो सबके लिए हो ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। और मैं कतरा होके भी, लोग कहते हैं जी हर सीट का 100 करोड़ रख रखा है, उन्होंने क्या लड़ोगे? अरे हमको बता रहे हो, जिन्होंने बाज लड़ा दिए, जिन्होंने 1 से 1.25 लाख लड़ा दिया, हम तो उनके साथ काम कर रहे हैं, हम थोड़ी लड़ रहे हैं, वही लड़ेंगे। ये है तो सबके लिए हो ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी तूफान से होड़ लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और इश्यू क्या लेके आएंगे? ये बचपन में कुमार विश्वास ने पूजा में एक लड्डू फालतू उठाया था, बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल एक बार अपनी मम्मी को लेके जा रहे थे, तबीयत उनकी मम्मी की खराब थी, तो उन्होंने टीटी से मदद मांग के कोने की एक सीट बिना पैसे दिए ले ली थी। ये इनका भ्रष्टाचार है। लोगों को मूर्ख समझते हैं आप। 2014 में, 2012-13 में हमने लड़ाई शुरू करी, मैं तो शायरी कर रहा था, सारी सरकारें खुश थी, हर नेता खुश था। आजकल तो मैं सोचता हूँ मैं पंजाब जाऊं
और मैं अपनी प्रसिद्ध कविता बोलूं कि मगर धरती की बेचैनी को बादल समझता है, तो पता नहीं मुकदमा नहीं करते मेरे खिलाफ कि तुमने नाम के आगे माननीय मुख्यमंत्री क्यों नहीं लगाया। अब मैं उनसे क्या बताऊं, ये मीटर में फिट ही नहीं हो रहा तो मैं कहां से लगाऊं। तो पट्टों ने क्या करा कि पिछले 15 साल में मैंने जितना सुनाया था उस सबको बैठ के लोग लगा के सुनवाया। क्या बोला है ये? मैंने कभी शंकर जी पे कोई चुटकुला सुनाया होगा? दुनिया सुनाती है। कुमार विश्वास एब्यूजिंग हिंदूज। मैंने संता बंता पे चुटकुला सुनाया होगा? सबने सुनाया है। कुमार विश्वास एब्यूजिंग सिख। मैंने मुसलमान भाइयों के साथ कोई मजाक कर दी, कुमार विश्वास एब्यूजिंग इस्लाम। मैंने जाटों पर एक चुटकुला सुनाया, हमारे इलाके में जाट ऐसे होते हैं भाई। मैं कल ही सुना रहा था भाई कहीं कि हमारे यहाँ तो इतने समाज सेवी लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और पंजाब और हरियाणा में कि वो 2 सीटर जहाज एक खेत में गिर गया तो पूरा गांव भागा और शव निकालने में इतनी ज्यादा मेहनत करी कि 60 शव निकल आए। तब किसी ने बताया जी आप तो कब्रिस्तान खोद रहे हो, क्योंकि इतने प्रेमी लोग हैं कि निकालो निकालो, कोई दब नहीं जाए, कोई चला नहीं जाए। तो इसमें मैंने बेइज्जती कर दी वो ले लेके, और 87 मुकदमे कर दिए पट्टों ने। जहां देखो वहीं मुकदमा। उन्हें लगा कि डर जाएंगे, ये तो घर बैठ जाएंगे। हमने कहा कि अगर मेरा अंतःकरण साफ है, मेरा मन साफ है, मेरी आत्मा साफ है, तो मुझे तो 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगता है। भैया शंकर जी मेरे भी हैं, आपके भी हैं। मैंने शंकर जी पे चुटकुला सुनाया जो दुनिया के सब कवि सुना रहे थे। आपकी भावनाएं आत होगी, सब माफ कर दीजिए, शंकर जी को माफ कर देंगे। या अगर आप शंकर जी से बड़े आदमी हैं कोई, उनसे भी बड़ी अथॉरिटी ले आए, तो फिर भगवान और आप जाने मैं बीच में कहां से आ गया। तो ऐसा नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा कि तुम खेलो तो टूर्नामेंट और हम खेलें तो गिल्ली डंडा। वाह, हमारी छोड़िए, भगवंत की छोड़िए। हम तो आदमी थे मंच के, हम तो स्टार परफॉर्मर थे, परफॉर्मेंस करते थे। अगर हमने कुछ ऐसा किया होगा तो हमें ईश्वर देखेगा। तुमने तो पूरी कौम का मजाक बना के दिखा दिया, तुमने तो पूरे पंजाब का मजाक बना के दिखा दिया। हिंदुस्तान की फिल्में जब डल हो जाती थी, जब सब उदास हो जाते थे, न हीरो घिर जाता था विलेन में, उस समय पंजाब का एक भांगड़ा दिखा देते थे, पूरी कहानी खड़ी हो जाती थी। 4 गबरू जवान नाचते हुए नहर के किनारे हरे भरे खेतों में डांस चल रहा है, कहानी दोबारा बड़ी हो गई। धर्मपाजी का तो काम ही एक ही था, 2 टांगे चौड़ी करो, उंगली उठाओ, नाचना शुरू कर दो, हो गया। पूरी फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। आपने वो पंजाब पीछे पहुंचा दिया। पंजाब की लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है। मैं तो आपके साथ हूं, अरविंद भाई तो आपके साथ हैं। हम लोग तो सिर्फ ये है कि साथ खड़े हैं। पंजाब की लड़ाई आपकी लड़ाई। पंजाब खुद तय करेगा कि उसको कैसा निर्णय लेना है, और एक आध दिन में तय नहीं होगा। आजादी की लड़ाई में कुल 124 शहीद हुए हैं, फांसी पे चढ़े हैं सरकारी लिस्ट में। 80 से ज्यादा सरदार हैं, 80 से ज्यादा पंजाब के बेटे हैं। शब्द का मतलब ही यह है कि लगाकर जान की बाजी रखे जो दार पर सर को, उसी मां भारती के लाल को सरदार कहते हैं। दार फांसी को कहा जाता है। इसीलिए इस बार जब दिल्ली में सरकार आई तो 2-3 बड़े निर्णय सरकार ने तुरंत किए। सबसे पहले एक SIT गठित की, उसके बाद जो 84 के दंगा पीड़ित थे उनके लिए एक सहायता राशि तुरंत घोषित करके तुरंत उसे निस्तारित किया गया। और हम आभारी हैं दिल्ली की सरकार के, वहां के मुख्यमंत्री के, कि उन्होंने कहा कि उन दंगों में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई मुकदमा दुनिया के किसी कोर्ट में लड़ना है, चाहे वो हेग हो और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उस लड़ने वाले व्यक्ति की सारी कानूनी सहायता की फीस, वकील से लेकर कागज तक की, वो दिल्ली सरकार पे करेगी। अगर कोई भी लड़ना चाहता है उसको दिया जाएगा। और फुल्का जी जैसे बड़े नेता के नेतृत्व में वो काम चल रहा है। लाल किले में जिसमें कभी बाबर अकबर घूमते थे, उसके पत्थरों पे काई जम गई है, पीपल निकल आया है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, मेरी तबीयत भी थोड़ी नासाज है, लेकिन अब थोड़ा सा ऊर्जा मिली है आपसे मिलके, आपसे यूरेनियम मिला है। शाम को तो आप जरूर आइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आग बुझ गई तो फिर ये बरसों में जलेगी, फिर ये जल नहीं पाएगी। बहुत मुश्किल से आग जली है। कहना आसान है कि मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, कहना आसान है कि मैं सिडनी आया हूँ, कहना आसान है कि मैं टीवी पे दिखता हूँ या मेरे फेसबुक पेज पे 30 लाख लोग हैं, लेकिन इस कष्ट को समझिए कि मेरी भी बेटी बड़ी हो रही है। और मेरी बड़ी बेटी जब टेलीविजन पे खबर देखती है कि उसके पिताजी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, उनको गालियां लिख दी गई, घर पर फोन पर गालियां दे दी गई, रात को गार्ड सो रहा है तो 15 लड़के मोटरसाइकिल में निकाल के घर के बाहर माँ बहन की गाली देते चले गए। तो ये तो बहुत छोटी छोटी शर्तें हैं। आप लोग तो उस परंपरा से आए हैं जहां पूरा पूरा वंश कुर्बान किया गया है। हमने तो इस आजादी के लिए, इस पूरे काम के लिए नाखून की उंगली नहीं कटाई। हमने तो बहुत छोटी शर्तें हैं, पर हमें अभ्यास नहीं था, हमने सीखा नहीं था। हम आपसे सीख रहे हैं, हम धीमे धीमे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करिए कि पंजाब बच सके।
कोशिश करिए कि आप दोबारा उन्हीं खेतों की ओर, उन्हीं गांव की ओर आदर और श्रद्धा से देख सकें। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से आप जुड़े हों, मैं बिल्कुल इस पवित्र भगवान के मंदिर में आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूं आप उससे ही जुड़ें। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उसका काम करें या उसके लिए समर्थन दें। बस पंजाब के लिए थोड़ा समय दें, पंजाब की समस्याओं पर सोचना शुरू कर दें। जहां गलती हमारी हो हमें भी बताएंगे आप ऐसा गलत कर रहे हैं, ऐसा कर लें। मुझको जिम्मेदारी सौंपी गई है ओवरसीज के दोस्तों से बात करने के लिए, इसलिए मैं जा भी रहा हूँ। जहां गलती उनकी हो उनसे भी कहा जाए, लेकिन ये आपने एक ही तवे पे एक तरफ रखे रखी 15 साल तो एक काली पड़ जाएगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। बस मुझसे इतना वादा करिए ताकि मैं दिल्ली जाके अपने नेताओं को, अपने साथियों को बता सकूं कि पंजाब को लेके लोग चिंतित हैं, पंजाब को लेके लोगों के मन में बात है, धारणाएं हैं कि कुछ हो सकता है। क्योंकि जिस तरह पुलिस राज्य है, जिस तरह से ड्रग्स का आतंक है, जिस तरह से लाल बत्तियों का आतंक है, ये तो पंजाब नहीं था जो हमने सोचा था, ये तो चीजें हमने नहीं सोची थी। आप सबसे हाथ जोड़कर इस बात का अनुरोध है कि कृपा पूर्वक अपने आप को तैयार रखिए और वही वाणी उच्चारिए कि अपनी लाशों से हम तारीख को आबाद रखेंगे। वो लड़ाई होगी कि काले अंग्रेज याद रखेंगे। जब तक लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपके लिए मिर्जा गालिब का शेर के सब कहाँ कुछ लाला गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिनहा हो गई। ये आप पार्टी ਲਈ भी और ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ भी, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾदिल ਲੋਕਾਂ ਲਈ। पर अपना फर्ज ये बनता कि पाकिस्तान दे कमाल दे क्रांतिकारी शायर दा एक शेर आ मिसरा गजल दा कि जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे नहीं मजदूर, जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे नहीं मजदूर, उस धरती दे हाकम कुत्ते, उस दे हाकम सूर। साडी निगाह इदां दी होनी चाहिए ते साडा जज्बा उन्हां दे होर शेर वांग होना चाहिए कि बेहिम्मते ने जेड़े बह के शिकवे करन मुकद्दरां ते, उगण वाले उग पैंदे ने सीने पाड़ के पत्थरां दे, ते मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी उन्हां दी जेड़े घरों बना के तुरदे नक्शे अपने सफरां दे। सो साडे हत्थे साडे नक्शे मैं शुक्रिया करदे हां बलराम सरान, डिप्टी संधू, तेजवीर सिंह ते विदेशा होरी जिन्हां ने ये सब कुछ अरेंज कीता। इन्हां दे नाल एक बार जोरदार ताड़ियां मार के सकिए। मैं हिंदी का प्रोफेसर रहा हूँ, 19 साल मैंने हिंदी पढ़ाई है। अगर मुझे सम्मान है तो इस बात का भी है कि दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में जिसके आगे पूरा समाज रुकता हो, वो अकेला केवल खालसा पंथ है जहाँ मेरे पूर्वजों की जबान रखी हुई, जहाँ हमारे कवियों की वाणी रखी हुई। दशमेश गुरुजी ने हमारे बहुत सारे कवि इसमें सम्मिलित करे, जहाँ जहाँ से जो अच्छा मिला, जहाँ जहाँ से जो नवनीत मिला, जो अच्छा मिला उन्होंने समेट लिया। तो मैं आज तो अपने एक प्राइवेट शो के लिए आया हूँ जो कार्यक्रम मैं करता हूँ। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मैं अभी तक कार्यक्रम क्यों करता हूँ। अभी मैं पटना जा रहा था तो मुझसे एक पुराने कांग्रेस के मंत्री मिल गए, मुझसे कह रहे थे पटना रैली है क्या? मैंने कहा नहीं, अभी सम्मेलन में जा रहा हूँ मुशायरे में। तो उन्होंने कहा अभी तक भी करते हो क्या? मैंने कहा यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक बार मंत्री बने थे 10 साल पहले, अभी तक आप क्या करते हो कि आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं? मैं तो आज की रात भी कहीं ना कहीं गाता हूँ, 5 रात गा के 10,000 15,000 डॉलर पे टैक्स दे के जिंदा रहता हूँ कि 5 दिन में कमा सकूँ, 25 दिन में खा सकूं और मैं अपना काम कर सकूं और मैं दूसरे काम देख सकूं। मुझे लगता है नई तरह की राजनीति है और पंजाब ने और खालसा पंथ ने नए प्रयोगों को सदा स्वीकार करा है। जब हम हर जगह हारे थे 423 सीट पे, तब पंजाब ने 4 सीट बचाई, जीत के आए। तो मुझसे अहंकार में भाजपा के सांसद जी ने पूछा कि कुमार साहब 4 ही आए हो पार्लियामेंट। मैंने कहा आखिरी वक्त में 4 ही काम आते, चिंता न करो, जाते हैं समझ लेना आखिर तक छोड़ के जाएंगे। वहां तो एक भी सवाल आप पे भारी है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई बड़ी है, सरकारें तो आनी जानी है साहब। जिस लाल किले पे कभी अकबर के कदम घूमते थे, उस लाल किले के पत्थरों पे पीपल उगाए हैं। जिनको कभी तलवार का इतना अहंकार था कि वो लोगों का धर्म नहीं रहने देते थे, शीश उड़ा देते थे। सबके सामने गुरुद्वारा रकाबगंज और शीशगंज सबके सामने है उस अत्याचार की निशानी। उनके वंश नहीं है और दुनिया का 7 समंदर पार करके ऑस्ट्रेलिया आइए तो इतना बड़ा एक गुरुद्वारा तामीर खड़ा हुआ है, उन पर नहीं रुका, वो नहीं पहुंचा पाए कि यहाँ रोक दें। तो जब लहर चलती है तो पहुंचती है। मैं ऐसी आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हक की आवाज़ उठी है। इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं क्योंकि हम बहुत सोचे सुलझे हुए राजनेता नहीं,
और शायर है तो बिल्कुल भी राजनीति नहीं आती। शायर का काम ये होता है मन में जो आए सबसे पहले तुरंत शायरी में बदल दो, और राजनीति का काम ये होता है कि पहले छुपा के रखो, फिर कुछ और बोलो, फिर कुछ और सुनाओ, तो आती नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे कि सबई भूमि गोविंद की या मैं अटक का, गोविंद की भूमि है, घोड़ा अगर डाला है अटक नदी में तो पड़ली पार उतरेगा। आप सब तो इतने पुराने लोग हैं, इतने सीनियर लोग हैं कि आपकी जो जी अजीत कुमार विश्वास जी, आपका आने का शुक्रिया। एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो भारतीय भाषाएं हैं इतनी, आप साहित्य के बैकग्राउंड में हैं, तो उन सब में जो किसानों की समस्याएं, जो सुसाइड हो रहे हैं हिंदुस्तान में सब जगह, तो साहित्य में जो कुछ आम आदमी पार्टी ऐसा कर सकती है कि हर भाषा में ये लिखा जा रहा होगा कि किसान कैसे आत्महत्याएं कर रहे हैं। पंजाब में इतनी आत्महत्याएं दुखदाई हैं, तो नाना पाटेकर ने लास्ट वीक ये महाराष्ट्र में शुरू किया है कि वो थोड़ा पैसे देंगे जो फैमिलीज को। तो आम आदमी पार्टी साहित्य में ऐसा जो लिखने वाले हैं किसानों की जो उनको आत्महत्या तक ले जाता है, ऐसा कुछ यूनिट बन सकता है क्या? देखिए, दिल्ली सरकार में, मैं तो सरकार का अंग नहीं हूँ, पार्टी में संगठन में काम करता हूँ, और आप समझिए कि अप्रवासी जो हैं, जो हमारे ओवरसीज़ हैं, उनको कितना गंभीर लेती है पार्टी इस समय कि इस बार सरकार आने के 2 महीने बाद जब रिशफल हुआ तो मुझे 3 चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई, कन्वीनर ओवरसीज़, कन्वीनर फंड और कन्वीनर कैंपेन। पार्टी इतनी गंभीर थी क्योंकि अरविंद और मनीष भाई दोनों बिजी थे, कहा गया कि तुम ये संभालोगे, और संजय भाई को पंजाब भेजा गया। तो इस बार जो हमने एकेडमी बनाई है, हमें इस बात पे भी गर्व है कि हमने 4 पगड़ीधारियों को टिकट दिया, चारों के चारों जीत के आए। हमारी असेंबली में 13 पंजाबी भाषी विधायक बैठते हैं हमारी पार्टी के, जो पंजाबी बोलते हैं। और हमने जो इस बार पंजाबी एकेडमी बनाई है, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसका बजट हिंदी से भी ज़्यादा होता हो, उर्दू से भी ज़्यादा होता हो, कितना ही ज़्यादा होता हो उतना करिए, लेकिन हर कॉलेज में, दिल्ली के हर स्कूल कॉलेज में पंजाबी भाषा में जो बच्चा या बच्ची टॉप करेगा उसे दिल्ली सरकार एक नगद इनाम दे रही है, ताकि वो इस बहाने पढ़ सके। किसी बच्ची ने अगर 12वीं में पंजाबी ले ली और पंजाबी लेने के बाद उसने पंजाबी में टॉप करा और उसको कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन अगर उसके घर पर 1 लाख रुपए का दिल्ली सरकार का चेक जाए, वो किसी परिसर में आए, तो मुझे लगता है